Hello everyone. So today we are going to start some important programs of string in Python. इस वीडियो में हम लोग प्रोग्राम्स के लॉजिक को डिस्कस करेंगे, उसके कोड को देखेंगे, बट उससे पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आपको बेसिक कंसेप्ट स्ट्रिंग का पता होना चाहिए, तभी प्रोग्राम करिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। And after watching the video or after understanding the logic, it's a request that you should write your program first in the notebook, then on the system. Because actually logic जो है वो आपके notebook में ही develop होगा, system पे नहीं, because system तो आपको hit and trial करेंगे तो error बता देगा और आप उसे ठीक कर लेंगे, तो उसमें इतना logic आपका develop नहीं हो पाएगा। So now we are starting from the basic level to the advanced level. Step by step we'll move ahead. So let me start with a very basic program where the question is write a program to accept a string and display its length. Like here we have done str1 equals to input enter in string, because input हमें पता है कि input जो है यूजर से input लेने में हमें हेल्प करता है, चाहे वो numbers हो या string हो या कोई और चीज हो। यहाँ पे हमने एक inbuilt function का यूज किया है where len, which basically returns the length of the string, and here you simply print L. So that means L वेरिएबल के अंदर आपकी लेंथ स्टोर होगी। किसकी लेंथ? उस स्ट्रिंग की लेंथ जो बेसिकली आप इनपुट करेंगे व्हेन देयर इज अ प्रॉम्प्ट, यानी कि जब ये रन करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट करेगा आपसे कि एंटर योर स्ट्रिंग, और आप वहां पे जो स्ट्रिंग एंटर करेंगे उसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी बाय L। बट अगर हमें ये इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज करना होता, इफ द क्वेश्चन कम्स दैट कैलकुलेट और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बट विदाउट यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शन, तब हम क्या करते? Like for example here I'm giving welcome, only one word I'm entering, press enter and 7, because in welcome there are 7 characters, so the length of the string is 7. But what happen if they're saying that without using the length? Then for that you have to use for the loop for I in str1. so that means str1 अब आपका iterator है, because string list tuples ये सब iterator हो सकते हैं, इन पे लूप एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, बट यस इंटीजर पे लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। यानी कि अगर मैं यहाँ पे for I in 123 करूंगा तो ये एरर थ्रो करेगा। so here the colon will come, तो I जो है वो स्ट्रिंग के एक एक करके हर कैरेक्टर को ट्रैवर्स करेगा। so जितनी बार ये ट्रैवर्स करेगा उतनी बार मैं यहाँ पे एक काउंटर लगा दूंगा, एक वेरिएबल c is equals to c+1, which basically count that how many times this loop will work, और यहाँ पे मैंने उसकी इनिशियल वैल्यू को मैंने 0 सेट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से ये लेंथ फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं, हम सिंपली एक काउंटर को यूज करेंगे एंड देन वी सिंपली प्रिंट c, right? So let me check whether it will work or not. So that means here the loop is basically going one by one from each character of the string, like welcome, press enter 7। अब अगर वो यहाँ पे हमसे ये कहता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करता और कहते कि फाइंड द प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स। सो लॉजिक यही है, क्योंकि आपने हर एक कैरेक्टर से प्ले करना है, तो लॉजिक तो यही है कि प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स। इंस्टेड ऑफ दैट यू जस्ट प्रिंट दैट प्रिंट, और आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आई जो है वो एक्चुअली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाता है या नहीं जाता। सो जस्ट यू डू दिस वन, दैट्स इट, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। सो व्हेन वी रन, so if I welcome and enter C, so that means I is traversing one by one to play with the characters. Whenever we have to play with the characters, this logic plays an important role, because you have to go one by one from each character. Got it? So now let me move to the next question. Write a program to accept a string and count number of vowels. When you have to count the number of vowels, this is a very important question for the exam point of view. So that means you have to traverse one by one from each character, and you have to check whether the entered character, whether the traversed character, यानी कि इस टाइम जिस कैरेक्टर पर हैं एक एक करके हर कैरेक्टर को चेक करेगा क्या वो वॉवल तो नहीं है। So that means यहाँ पे आपके पास if कंडीशन आ जाएगी। So that means for I in str1
Here we'll put this, a simple way we'll do this. If I in, हम एक string बना लेते हैं, A E I O U और कैप्शन भी ले लेते हैं, and here we'll use a counter because we have to count something, so obviously एक counter होना चाहिए. काउंटर के लिए वेरिएबल जरूरी नहीं है कि आपने C यूज करना है. I'm using here C, doesn't matter. So colon will come. So जितनी बार, that means loop तो एक एक करके हर कैरेक्टर में जाएगा, ठीक है. जितनी बार वो मैच करेगा कि जो I यानी कि कैरेक्टर जो उसने पिक किया है स्ट्रिंग में से वो इस स्ट्रिंग में लाई करता है, अवेलेबल है, then only the counter will increase by 1. So that means if I go with the same string like I entered earlier, welcome, so W इसमें लाई नहीं करेगा, so that means C की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी. E इसमें लाई करेगा तो C की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. L नहीं करेगा, C नहीं करेगा, O फिर से करेगा तो O से फिर C की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. M नहीं करेगा, E अगेन इट विल अलाउ, so that means C की वैल्यू 3 हो जाएगी when we print C. So here after the loop we have to print the value of C. So let me check now. Run. We'll enter a string welcome, enter and see. So first understand the logic. Logic समझ में आ गया अगर आपको, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, because then वो प्रोग्राम को थोड़ा सा ट्विस्ट भी करेंगे, then also you can catch that logic. लेकिन अगर आपको लॉजिक क्लियर नहीं है, आप सिर्फ प्रोग्राम को रट रहे हैं, तो प्लीज ना करें, बिकॉज प्रोग्रामिंग रटने के लिए बिल्कुल नहीं है. So the next is to accept a string and display it in reverse. कि हमने इसको string को लेना है और उसको reverse में print करना है. For that again there is a one inbuilt function is there, that is reverse. So हमने यहाँ पर एक इनपुट लिया यूजर से and simply str1 dot, yeah, here we have to use with the string slicing method, not by the reverse method. Reverse method is available in the list. So here we can do this str1 and colon -1. If we press enter, run, and we enter the string, sorry bracket नहीं था यहाँ पर, again we'll run this welcome C. So यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का कोड है जहाँ पे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग की हेल्प से, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है इसके लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की समझने के लिए कि व्हाट इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग. आई एम नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस, अदरवाइज वो स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे ही सारा टॉपिक चला जाएगा. सो यहाँ पर str1 colon -1 by writing this is the welcome, जो आपने स्ट्रिंग एंटर किया वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया. यहाँ पे रिवर्स फंक्शन नहीं है स्ट्रिंग में, that is a list, by mistake हमने उसको किया था, so sorry for that. So now the next one is write a program to check whether an input string is palindrome or not. You can also write, you can also, I mean इस जो मैं जहाँ से क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, so that कि आप यहाँ से क्वेश्चन को देख सकें. by clicking on this show answer आप यहाँ से इनको ले सकते हैं, ठीक है. So हमने क्या किया, हमने पहले I'll just copy this and so that कि टाइपिंग पे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, हम लोग लॉजिक अच्छे से समझ लें. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम है क्या. पैलिंड्रोम इज बेसिकली जहाँ पे आप स्ट्रिंग को फ्रंट से बैक की तरफ या बैक से फ्रंट की तरफ रीड करते हैं तो वो एक जैसे ही रीड होते हैं, जैसे कि नितिन NITIN. So जो नितिन है, either you read from left to right or from right to left, so it will go with the same way, ठीक है. So हमने क्या किया, हमने पहले क्या करना है, लॉजिक क्या है, हमने पहले स्ट्रिंग को रिवर्स करना है. once it is reversed then only you can check कि जो रिवर्स होकर स्ट्रिंग आया है और जो हमने रिवर्स ओरिजिनल स्ट्रिंग था क्या वो मैच करते हैं. अगर वो मैच करते हैं so that means कि वो पैलिंड्रोम है, अगर वो मैच नहीं करते तो वो पैलिंड्रोम नहीं है. लेकिन यहाँ पे हमने रिवर्स होने के लिए हमने यहाँ पर
स्लाइसिंग का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे लूप के थ्रू हमने एक एक कैरेक्टर लास्ट से पिक किया और उसको हम स्ट्रिंग में ऐड ऑन करते गए। आप कैसे भी कर सकते हैं, आप अगर उसको स्लाइसिंग के थ्रू करना चाहते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम में दिखाया, आप वैसे स्ट्रिंग को रिवर्स कर लीजिए एंड सिंपली यू हैव टू मैच वेदर कि ये जो स्ट्रिंग है, जो यानी कि जो रिवर्स होकर आया है, वो ओरिजिनल स्ट्रिंग से मैच करता है या नहीं करता, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर वो मैच करेगा तो आपने सिर्फ पैलिंड्रोम प्रिंट करना है, जैसे कि आपको रन करके दिखाता हूँ। If I run this and I'll just enter Nitin. Nitin is a palindrome because if you read from, NITIN from the left to right or from right to left, it read as a NITIN, that is Nitin only. ठीक है, सो ये हमारे पैलिंड्रोम का लॉजिक पता होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करना हमने सीख लिया। इसको आप पार्ट्स में डिवाइड करिए कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम होता है जिसमें हम उल्टा सीधा दोनों तरफ से हम स्ट्रिंग को एक जैसा मैच कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे क्या लॉजिक आना चाहिए, स्ट्रिंग को रिवर्स करना आना चाहिए। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्ट्रिंग को रिवर्स करना सीख लिया, अब आपने सिर्फ उसको मैच करना है, दैट्स इट। आप इस लॉजिक को करते हैं या नहीं करते कोई इशू नहीं है, आप इससे मत जाइए, डजंट मैटर। जो मैंने यहाँ पे यूज किया है आप उसी पे जाइए जो इजी है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। मैं उसके थ्रू भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि हम उसे कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर see here, I've changed the logic and put single line of statement for reversing the string, the same जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। सो इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी है। अगर आप सिंपली जल्दी जल्दी में सिर्फ प्रोग्राम को रटने की कोशिश करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिए, समझिए और फिर उसको खुद से अटेम्प्ट करिए, तभी क्लैरिटी होगी, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। And this is also a very important question for the exam point of view, palindrome as well as the count the number of vowels. ये बहुत important question है। And write a program to count number of small case alphabets in string. This is again an important because जहाँ पे हमें तीन तरह से खेला जाता है स्ट्रिंग के साथ ना, कैरेक्टर वाइज प्ले करते हैं, हम वर्ड वाइज प्ले करते हैं और लाइन वाइज प्ले करते हैं। कैरेक्टर वाइज का मतलब है जहाँ पे हमें नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर, नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर, ये सब चीजें चाहिए होंगी। सो लेट मी सी द सॉल्यूशन हियर and I just copy this just to save the time of typing the entire code. So यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से एक स्ट्रिंग को इनपुट ले रहे हैं, देन हम एक एक करके फॉर आई इन str, ये मैं आपको मीनिंग बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम ट्रावर्स कर रहे हैं और सिंपली हर कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं क्या वो लोअर है। टू चेक वेदर इट इज इन लोअर केस आपने सिंपली इज लोअर फंक्शन करना है। अगर वो उसको सेटिस्फाई करेगा तो हमने यहाँ पे काउंटर लगाया, काउंटर नेम यहाँ पे हमने एल को लिया है, सो एल इज इक्वल्स टू एल प्लस 1। यहाँ पे भी हम कैपिटल एल कर देते हैं बिकॉज अदरवाइज केस सेंसिटिव है। सो अब हम यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग करता हूँ W कैपिटल में, देन E स्मॉल में, देन L कैपिटल में, देन C स्मॉल में, O M E, just to check I press enter and total number of small case alphabets are 4. So अगर आपने अपर केस कैरेक्टर को चेक करना होगा then simply just change this function is upper, run WELCONE, press enter and total small case because caption आपको चेंज करना होगा, small case की जगह upper case करना होगा, then only the same caption will come. So now at least a basic programming that how to play with the characters, I hope that ये प्रोग्रामिंग क्लियर हो गई होगी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बाकी के प्रोग्राम्स भी हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे, बट अभी हम सिर्फ 5 प्रोग्राम को डिस्कस करें सो दैट कि आप इन 5 प्रोग्राम को पढ़ें, अच्छे से समझें और करें, ठीक है। If anything is not clear to you, please put in the comment so that कि next time हम उन doubts को जरूर ले सकें। Thank you.